Good morning, class. Today I am with a new topic, that is hybridization, in front of you. I want to deal this topic hybridization because this is very important to understand the shape and energies as well as the mixing of the orbitals. So first of all, we understand the topic. What is it? What is this term hybridization refers to? You are very well introduced with this term hybridization. You have studied this term in your biology. बायोलॉजी में आप लोग ये हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक पढ़ते हैं, क्लास 10th में भी पढ़ते हैं कि हम हाइब्रिड वेराइटीज निकाल रहे हैं डिफरेंट जो फूड आइटम्स हैं, जिससे कि प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाए उसी एक पर्टिकुलर लैंड एरिया में और उसकी क्वालिटी बढ़ जाए. यहाँ पर उसका जो कंसेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन का वो भी है तो थोड़ा सा यही, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है. लेट्स सी व्हाट इज दैट. वो क्या है कंसेप्ट, जरा देखते हैं. देयर आर 2-3 एग्जाम्पल्स रिटन ऑन द स्क्रीन. मीथेन लिखा है, अमोनिया लिखा है, वाटर लिखा है. whenever you take any atoms and which are going to be share or donate or get the electrons from one another to form a molecule, in that condition atomic orbitals combined with each other. The atomic orbitals which are combined with each other, they may have different energy, not a large gap with them. उनमें बहुत gap नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा slightly difference होना चाहिए, and their shapes must be different. उनकी shapes में भी difference होगा. But after mixing of these atomic orbitals, some new orbitals are formed, which we named as hybrid orbitals. These hybrid orbitals having the energy, all hybrid orbitals have the same energy and have the same shape. What does it mean? It means that it is a phenomena where we intermix the orbitals which have the slightly different energies and slightly different shapes, and energy again redistribute in such a way their shapes are same, they have equivalent energies and they have equivalent shapes. That is the main point behind the hybridization. So what is the definition of the hybridization? The definition of the hybridization is the intermixing of the atomic orbitals having slightly different energies so as to redistribute their energies, resulting in the formation of new set of orbitals of equivalent energies and shapes. There is no change in the number of orbitals. The number of atomic orbitals which you have mixed, the number of hybrid orbital is same. आपके जो hybrid orbitals होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे उनका नंबर जो कि atomic orbitals आपने जितने भी लिए हैं. That is the main point. You must remember this point. I think ये point आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा. मैं एक बार और रिपीट करती हूँ. एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहीं पर. आपने डिफरेंट कलर की चॉक्स ले ली हैं. आपके पास चॉक्स हैं, रेड है, ब्लू है, येलो है, वाइट है. आपने सबकी 2-2 चॉक मिला ली और आपके पास टोटल नंबर ऑफ चॉक्स जो है वो 7 है या 8 है. सपोज आपने 4 कलर की चॉक ली है तो 8 चॉक्स आपके पास हैं. आपने उन्हें एक मैजिक बॉक्स में डाला और उनको इस तरीके से शेक किया बॉक्स को कि जब आपने उस बॉक्स को ओपन किया तो वो सारी की सारी जो चॉक्स थी उनका कलर भी सेम हो गया और उनकी शेप भी सेम हो गई और उनका एनर्जी लेवल तो सेम हो ही हो गया. तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. तो जब हमारे मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो उन मॉलिक्यूल्स के बनने में हमारे जो एटम्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स बेसिकली, वो पार्टिसिपेट करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड. बॉन्ड कैसा भी बना हो, बॉन्ड के बनने से हमें कोई मतलब नहीं है. वेदर इट इज ionic bond, whether it is metallic bond, whether it is covalent bond, no problem at all. But when atomic orbitals come closer to each other to form the bond and they mixes with each other, then some new orbitals are formed and we termed that orbitals as hybrid orbitals. हम उन orbitals का नाम hybrid orbital देते हैं and this phenomena is known as hybridization, और इस phenomena को hybridization का नाम भी देते हैं. Now some salient features of hybridization. Hybridization की कुछ important features हैं. क्या features हैं जरा देखिए. The first point is the number of hybrid orbital is equal to the number of atomic orbitals that get hybridized. जितने भी number of orbitals आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपने लिए हैं जिनको कि आपने मिक्स किया है, उनका नंबर और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स उसके बाद आएंगे जो कि सेम एनर्जी के होंगे और जिनकी शेप सेम होगी, वो
नंबर में सेम होंगे, उनका नंबर सेम होगा। अगर आपने 4 ऑर्बिटल लिए हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी 4 आएंगे, अगर आपने 2 ऑर्बिटल लिए हैं तो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल भी 2 ही आएंगे। सेकेंड पॉइंट, द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप। यस, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो आपके होते हैं देयर इन, उसमें आपकी एनर्जीज में, शेप्स में स्लाइट डिफरेंस होता है, बट इन केस ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल देयर इज नो डिफरेंस इन एनर्जी एंड शेप। उसकी जो शेप और उसकी जो एनर्जी होती है दैट रिमेन्स सेम, वो सेम रहती है। दैट इज अगेन अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कह लीजिए एंड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। द नेक्स्ट थर्ड पॉइंट ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के बारे में जो थर्ड पॉइंट हम पढ़ेंगे वो ये है, द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड्स देन द प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। बिल्कुल, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के जो बॉन्ड बनेंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि उनकी शेप सेम है, उनका एनर्जी सेम है, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल होंगे इन कंपैरिजन टू प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, क्योंकि वहां पर एनर्जीज में स्लाइटली डिफरेंस है और वहां पर शेप्स भी अलग है। एंड द लास्ट salient feature of hybridized orbital is these hybrid orbitals are directed in space in some preferred direction to have minimum repulsion between electron pairs. I have already explained this topic about the lone pair bond pair and bond pair repulsion, and this is about that point कि hybrid orbital इस तरीके से अपने आप को स्पेस में एडजस्ट करते हैं, प्लेस करते हैं, जिनसे कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच का जो रिपल्शन है दैट गोज मिनिमम, और जिससे कि आपका जो बॉन्ड है, आपका जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल हो जाए। तो दिस इज अबाउट द salient features of hybridized orbital. Now we will study about the important conditions for hybridization. What are the important conditions for hybridization? First point, the orbital present in the valence shell of the atom are hybridized. बिल्कुल, जो ऑर्बिटल है वैलेंस शेल में, जो प्रेजेंट ऑर्बिटल्स हैं वो हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई आपने ऑर्बिटल ले लिया जो हाइब्रिडाइज नहीं हो सकता तो आपका काम नहीं चलेगा। सेकेंड पॉइंट, द ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी। हाँ, थोड़ा बहुत स्लाइट डिफरेंस होना चाहिए, कोई बहुत ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए एनर्जी में। जैसे कि अगर मैं डी ऑर्बिटल लूँ, डी ऑर्बिटल में मेरे डी सबशेल लूँ, तो डी सबशेल में मेरे पास 5 ऑर्बिटल होते हैं। उन 5 ऑर्बिटल में जब हमारे बॉन्डिंग होती है तो बेसिकली स्प्लिटिंग होती है। वो स्प्लिटिंग में क्या होता है, 3 ऑर्बिटल की एनर्जी सेम रह जाती है, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी या तो उनसे ज्यादा हो जाती है या कब हो जाती है, 2 तरह की स्प्लिटिंग होती है, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एंड टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग। तो वहां पर उनकी एनर्जी में जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं होता, थोड़ा सा गैप होता है। तो इसीलिए हमें ऐसे ही ऑर्बिटल्स को चूज करना है जिनकी एनर्जीज में बहुत डिफरेंस ना हो, जिनकी एनर्जीज में कम डिफरेंस हो। थर्ड पॉइंट, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एसेंशियल कंडीशन प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन। बिल्कुल, ये जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन जाएगा ही जाएगा या उसका प्रमोशन होना ही चाहिए, दैट इज नॉट एसेंशियल कंडीशन, वो कोई एसेंशियल कंडीशन नहीं है। एंड द लास्ट पॉइंट फॉर हाइब्रिडाइजेशन इज इट इज नॉट नेसेसरी दैट ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं वही पार्टिसिपेट करेंगे। इन सम केसेस इवन फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल टेक्स पार्ट इन द hybridization also. So this is the important point of hybridization. ये important point है hybridization के। Now I want to discuss types of hybridization. Hybridization जो है हमारा वो कई तरीके का है। यहाँ पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हम डिस्कशन करेंगे वो 3-4 टाइप्स का ही हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप, दैट इज sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन मींस जहां पर आपका सिर्फ एक ऑर्बिटल s का और एक ऑर्बिटल p का ही हाइब्रिडाइज्ड होगा। मतलब आपने एक s ऑर्बिटल ले लिया है और एक p ऑर्बिटल लिया है, वहां पर s और p ऑर्बिटल ही हाइब्रिडाइज्ड होंगे। मतलब आपके पास 2 ऑर्बिटल हैं जिनका कि आप हाइब्रिडाइजेशन करने जा रहे हैं। इसके अलावा sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है जहां पर एक s ऑर्बिटल है आपका और 2 p के ऑर्बिटल्स हैं जो कि हाइब्रिडाइज्ड होंगे। हाइब्रिडाइजेशन दे अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन, जहां पर वो हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। एंड द थर्ड टाइप इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन मीन्स वेयर 1 s ऑर्बिटल एंड 3 p ऑर्बिटल्स टेक पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आते हैं और हमारे पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आते हैं।
तो स्टार्टिंग में अभी हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में अभी सिर्फ इंपॉर्टेंट 3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल लर्न अबाउट द मोर टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एज वेल एज विद द फॉर्मूला हाउ टू फाइंड आउट द hybridization. We have a hybridization formula and we will find it out. Okay, thank you and have a good day.